just only a few months later, right? Now, what you should do right now? How you should practice the whole syllabus in just a couple of weeks. How you can revise through the important topics daily. How you can memorize what is important and skip what is not important. Now, today I am here to highlight about the points. Now, you can realize me. I am Henry Shahid. Currently, I am pursuing my first year MBBS from IMS Kalyani. Today, I will highlight some points that is beneficial for both NEET and JEE preparing students because their syllabus may be different. उनका सिलेबस अलग हो सकता है पर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपका अभी प्रिपरेशन का लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सेम है सबके लिए और वो क्या है पहली चीज PYQ previous years questions both for NEET and JEE. PYQ is the main book that you should follow for practicing only because दूसरे इन सब दिनों में आप जरूर आपका पूरा सिलेबस का जो थ्योरी नॉलेज है ना थ्योरेटिकल नॉलेज वो सब कवर कर लिए तो आपको अभी क्या चाहिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस ना आप क्या प्रैक्टिस करोगे आपको तो एक टेम्पलेट चाहिए ना कि उसकी तरह आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा नाउ फ्रॉम PYQ यू हैव द टेम्पलेट जब मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम में था तो मैंने भी सोचा था चलो सब PYQ प्रैक्टिस करेंगे पर उसी वक्त मैंने रियलाइज किया कि PYQ तो बहुत दिन से आ रहे थे मतलब नीट जेई तो सिर्फ ये नहीं कि 5 साल आगे से वो स्टार्ट हुए हैं तो बहुत दिन आगे से स्टार्ट हुए तो इतना दिनों का हम PYQ कैसे तैयारी करें नाउ यू शुड फोकस that you only do the PYQ of the latest 10 years. Yes, for NEET students, only the latest 10 years of physics and chemistry is enough. Yes, it is enough. For biology, I will suggest you to go through the PYQ of the last 20 years. Because biology, you know that it is not that much of the physics and chemistry of laborious work. You just can go through the biology for the latest 20 years. But for physics and chemistry, if you are doing PYQ, if the PYQ of the last 10 years is at the tip of your finger, na, then I will tell you your practice is more than enough completed. For JEE students, there are various sessions of JEE main is occurring in our country per year, and in one day there is also 2 sessions of JEE main. So if you just go through the last 5 years of PYQs in the JEE, then it is just more than enough for both math, chemistry, physics, for everything. Now here I should tell you a secret. Who is configuring your questions in NEET or who is configuring your questions in JEE? NTA, right? So in NEET and JEE, what is common? Physics and chemistry. So for NEET students, I will suggest you that you should go to the PYQ of the JEE of last 5 years. Yes, in the last 5 years, you should get plenty of numbers of various type of physics and chemistry questions. And for the same JEE students, I will suggest them to go through the PYQs of last 10 years of NEET. Just for them that they should know how the questions in NEET are coming. And in that way, they are both just compare how NTA is giving questions in JEE Main and how NTA is giving questions in NEET. This will be so much beneficial for you guys. Just listen to me. In my preparation time, I have done this and I have benefited so much. So I am sharing with you. Now the next fact I should focus is that आपको ना बहुत सारे एग्जाम देना पड़ेगा. You should feel the stress that you will feel at the examination day at right now. In your home, ये हो सकता है आप कोचिंग सेंटर में आपका वो एग्जाम का माहौल आप तैयार कर सकते हो या फिर घर में आपने ये सीट पे बैठ के आपके सामने टेबल के ऊपर अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लैपटॉप पे या अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑफलाइन पे ओएमआर सीट लेके आपको वो प्रेशर फील करना पड़ेगा क्योंकि इन द एग्जामिनेशन हॉल यू शुड फेस ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड फॉर दिस यू हैव द acclimatization. Now how you should acclimatize with this examination fear? You should give tests regularly. Now what is I am telling in the regular manner? क्योंकि और सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है आपको मतलब कोशिश करना चाहिए कि हर दिन आप एक करके एग्जाम दिए ना हम में से कुछ लोग एक मिसनोमर फॉलो करते हैं क्या मिसनोमर वो लोग सोचते हैं कि पहले मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें ना परफेक्ट सेंस बन जाऊं उसके बाद मैं इसमें टेस्ट दूंगा कैसे मतलब आप तो जानते हैं ना कि आप जो टेस्ट देने वाले हो उसका सिलेबस क्या है ये फुल सिलेबस टेस्ट भी हो सकता है या फिर ये कोई पार्ट टेस्ट भी हो सकता है तो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर फ्रेंड्स ऑफ मी व्हाट दे डू दैट
they think that I will just become the perfect man in this chapter, and after that, after my completion of the chapter, after my revising all the concepts of this chapter, I will sit for the examination. Now एक बात आपको सोचना पड़ेगा, इस दुनिया में कौन परफेक्ट है? कोई नहीं परफेक्ट। जिन्होंने हमको बनाया है ना, उनके सिवा इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। Now how you should become perfect? You should become perfect by giving more tests and more tests. You are thinking you are perfect. You are giving test. You are realizing you are not perfect. ये आपको सही है, या फिर आप जानते हो आप परफेक्ट नहीं हो, पर आप क्या चाहते हो? मैं टेस्ट देके अपनों को परफेक्ट बनाऊंगा। I will become the most perfectionist by giving the tests regularly. तो ये आपको चाहिए, एग्जाम देके आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, ना कि ये सोच के कि मैं पहले परफेक्ट बन जाऊं उसके बाद एग्जाम दूंगा। क्योंकि एग्जाम देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन nowadays, because only a few months are left and you have to just feel the examination condition, you have to feel the stress, you have to feel the pressure, you have to feel the moment, so that you cannot fear in that case in the examination, right? Now for NEET students, मैं एक बात बोलूंगी कि आप कैसे, आपका ये जो वास्ट सिलेबस है ना, बायोलॉजी का ये सिलेबस बहुत ही वास्ट है, आप ये कैसे मतलब रिवाइज कर सकते हो? किन पार्टों को आपको मतलब फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है? वो पार्ट है इसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटाबेस क्वेश्चन आता है, मतलब डीएनए का लेंथ कितना है हमारे बॉडी में टोटल, डीएनए का एक बेस पेयर, दोनों बेस पेयर के अंदर कितना लेंथ होता है, डीएनए का एक पूरा टन में टोटल कितना बेस पेयर रहता है, या फिर ऐसे टाइप का बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटाबेस क्वेश्चन है। आपको क्या करना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल जो डाटाबेस क्वेश्चन है ना, ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में रेडी करना है, और उसके बाद उसको आपको रेगुलर फ्रीक्वेंटली आपको जस्ट मेमोराइज करना है, या फिर मैं अगर कहूँ कि आपको पूरा मगअप करना है। क्योंकि वो चीज अगर आप फॉरगेट मतलब कर जाओगे ना, तो एग्जाम पे टाइम पे आपको बहुत रिग्रेट फील होगा कि मैं तो सब कुछ जानता था, मतलब हर थ्योरी मेरा टिप ऑफ द फिंगर था, पर मैं फिर भी ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया। इसलिए आपको, ताकि वो रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं आज से आपको कह रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल डाटा पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? और कैसे आप मेन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो? आप जानते हो कि इस टॉपिक का वेटेज कितना है, इस टॉपिक का वेटेज कितना है। वेटेज वाइज आपको हर एक टॉपिक को मतलब रिवाइज कर देना है। मतलब आप एक टाइमलाइन लोगे कि आई शुड कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 days and you should reach the timeline. Okay? Now for JEE student, I will focus on the mathematics part. But in mathematics, you know how to solve a question. But after knowing how to solve a question, you should find what is the fastest way to solve the question. Because when I was preparing for my JEE and when I was appear in my JEE main exam, I found that the most hardest thing, the most hard constraint in the examination was the time. It was so much time killing that questions तो easy है आपके लिए, पर वो बहुत ही time killing है। तो इसीलिए आप जब मैथ पढ़ रहे हो ना, मैथ का बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होता है जो आप जानते हो, आपने इस दिनों से बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो आपको रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए। मतलब कैसे रिवाइज? मतलब अच्छा फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला को थोड़ा याद कर लिया, फॉर्मूला को एक बार लिख लिया, और उस फॉर्मूला के बेसिस में एक जो क्वेश्चन है वो मैं प्रैक्टिस कर लिया, बस ऐसे ही। तो इसमें क्या होगा, आपको फॉर्मूला, आपको कॉन्सेप्ट एंड आपको ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। एटलीस्ट फॉर दिस 2 months आप तो नहीं भूलोगे ना, जो आपको चाहिए अभी। नाउ फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स। इफ आई टेल अबाउट फिजिक्स में क्या है, 11th का थोड़ा पार्ट है और 12th का पार्ट है। 11th में आप मैकेनिक्स को मतलब उतना ज्यादा भी प्रायोरिटी मत दो। मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसा जगह है ना जो जेईई एडवांस के लोग वो मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरह से नजर देते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जाता है। पर नीट और जेईई में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप ये जानोगे कि मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा या फिर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए। तो मैकेनिक्स से बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं बनाना है। व्हाट यू शुड डू, यू विल फोकस ऑन द 12th सेक्शन, मतलब क्लास 12 में जो आपका मॉडर्न फिजिक्स में हर तरफ का क्वेश्चन आपका एकदम रेडी होना चाहिए। You should know every type of question that have came into NEET और JEE, because वो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट बहुत कम है, बहुत छोटा है, पर उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर ये आप छोटा ये जो चीज है ना, जो आपको बहुत इफेक्टिवली आपका स्कोर बूस्ट कर सकता है, ये आप करोगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस ग्रो अप होगा, और मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में पूछूं, केमिस्ट्री में तीनों चीज होता है,
physical chemistry, inorganic chemistry, and the organic chemistry. So inorganic chemistry you have to पूरा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, पूरा याद रखना पड़ेगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पूरा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, आपको कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा भी, पर बहुत मतलब एक्सेप्शंस भी है. ये सब एक्सेप्शंस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जो नॉर्मल ट्रेंड है ना उससे बाहर ये सब एक्सेप्शंस ही आते हैं. ये सच बात है. कौन सा एक्सेप्शंस आप याद करें? मैंने पहले ही बोला है आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पीवाईक्यू से पढ़ना है. मतलब केमिस्ट्री का आपने पीवाईक्यू नहीं देखा, ठीक है छोड़ दो, पर इनऑर्गेनिक का नहीं देखा मत छोड़ो, आपका नहीं होगा. आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पीवाईक्यू रेडी करना है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू से आप पहचान सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और पीवाईक्यू में मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तो सब कुछ याद नहीं रख सकते हो ना, तो क्या याद रखेंगे या क्या याद नहीं रखेंगे वो आप जान सकते हो सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस करके. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब इसमें उतना ज्यादा रट्टा मार के कुछ नहीं होगा. यू कैन नॉट जस्ट मग अप ऑल द थिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट your thoughts are in organic chemistry, what you have prepared for it, that will give your marks in organic chemistry. The most crucial point in organic chemistry is that it is the most boring area. मतलब केमिस्ट्री लेंदी चैप्टर है, बट इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो बायोलॉजी की तरह है. आप कॉन्सेप्ट जानते हो, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर आप एकदम मिनिमल टाइम में दोगे और मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So you should focus in the organic chemistry. I have seen that many of the students found themselves weak in the organic chemistry part. I will suggest them that please go through the organic chemistry theory portion regularly. If you have not prepared for the theory portion, prepare it right now because अभी भी टाइम है. मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रैपिड रिवीजन है उसके लिए अभी भी टाइम है. प्लीज रैपिडली रिवाइज कीजिए ये पार्ट क्योंकि ये बहुत कम टाइम में होता है और ये बहुत ज्यादा मार्क्स आपको देगा. Now फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वो पूरा मैथमेटिक्स के जैसा है. You should know the formula and next you should know how to use the formula. मतलब ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला जानते हो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में डॉन हो गया, एकदम नहीं. आपको जानना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला कैसे किन किन प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हो. इसके लिए आपको फिर वो यही रखी बात है बहुत सारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी वो सब प्रैक्टिस का जो बुक्स है ना जो आपने इन दिनों तक अभी प्रैक्टिस किए हैं उन सब बुकों में मत जाइए. सिर्फ पीवाईक्यू, ओनली फोकस ऑन द पीवाईक्यू गाइस. दिस विल बिकम मोर बेनिफिशियल दैट व्हाट यू आर थिंकिंग. यस, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, पीवाईक्यू में फोकस कीजिए ज़रा. पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू. और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच राइट नाउ. मतलब एक ही चैप्टर में एकदम पूरा जानने का अभी कोई भी जरूरत नहीं है. आपको अभी फोकस करना है पूरा सिलेबस में. ओनली वन चैप्टर विल नॉट गिव यू द मैक्सिमम मार्क्स और द मोस्ट ऑफ द मार्क्स. If you have completed all of the syllabus, then that will give you the whole marks. Okay, so don't focus on any particular chapter or your favorite chapter. ये मेरा favorite chapter है, इसको हर रोज पढ़ता हूँ, इसको तो थोड़ा समझ नहीं आता, चलो इसको skip करते हैं. नहीं, अभी मत करिए वो सब. You should focus every chapter equally, and more specifically the chapter you neglect now will give you the burden, will become your burden in the exam. So please try to focus on every chapter and go through every chapter. Don't experiment too much that कि एक चैप्टर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक चैप्टर के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. नहीं, ये सब नहीं चलेगा. हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज से आपको देखना पड़ेगा. फिर मैं बोलूँगा कि as I have gone through the same period that you are right now, I know how you are feeling, how you are getting stressed, how you are getting depressed by getting some low score in your exams, how you are finding it very much difficult to revise all of the chapters in just a few days. I know everything, but please believe me, you cannot enjoy the view of the sunset or the view of the sunrise unless you climb the hill. So to enjoy the view, you have to climb the hill. You have to do the rigorous work. So मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अभी जो आपका एफर्ट दे रहे हो ना, एग्जाम के बाद इस एफर्ट को आप याद करोगे और आप देखना उतना ही रिलीफ आप महसूस करोगे. तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो एंड अप करते हैं. If you have any queries, please leave your question in our comment section. I will definitely answer them. And you know what? The roots of success are bitter, the fruits are sweet. So keep yourself motivated all of this time. Thank you.